हमारे धर्म में किसी एक इंसान ने जानवर को भी तकलीफ देना मना है। एक चींटी को भी, कुत्ते को भी, बिल्ली को अगर तकलीफ होता है वो काम नहीं करना है। उसके वजह से आदमी स्वर्ग में जाएगा। अगर करेगा और कुत्ते बिल्ली को भी कष्ट हुआ तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो ये कुर्बानी के टाइम पे गाय का काटना हमारे यहाँ कोई जरूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए हमने ये विधि निकाला है कि इसके अलावा 5-6 जानवर है। जब हमारे इस मुल्क के लोग, अक्सर भाई लोग सनातन धर्म के और हिंदू मजहब के हैं और वो गाय को अपनी माता मानते हैं, पूजा करते हैं, तो हमको क्या जरूरी है कि हम उसी को काटें? बिल्कुल ना काटें। सख्ती से हम मना कर रहे हैं, मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि गाय को आप लोग बिल्कुल ना कष्ट दें, आप दूसरे जानवर काटिए, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करने वाला है। এইবিলাক থাৰ্ড ক্লাছ কথাৰ উত্তৰ নিদিওঁ। মানে মই এইবিলাক থাৰ্ড ক্লাছ, এইবিলাক মানুহে শুনিব নিবিচাৰে। এই ঈদৰ সময়ত কোনে কি কাটিব আগতে এইবিলাক নুশুনে। ঈদ হৈ যায়, নিজৰটো নিজে ধৰ্ম পালন কৰে, ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এইবিলাক কথা বতৰাবিলাক মানুহে খুব বেয়া পায়। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাবিলে যে এইটো অকণমান মাজে মাজে যোৱাটো ভাল। সেইকাৰণে এইবাৰ তেওঁ খুব কাৰাকৈ কোৱা নাই, তেওঁ মাজে মাজে কৈছে। কোৱালে তেওঁৰ লগৰ AGPৰ দ্বাৰা, নে কি AGP নহয়, কাৰ দ্বাৰা, তেওঁৰ লগত থকা ৰাজ্যসভাৰ পাৰ্টনাৰ ADF-ৰ দ্বাৰা কোৱালে। কি হ'ল যে ইমান দিন হৈ থকা এইটো হ'ব নালাগে। তেওঁৰ কি এখতিয়াৰ আছে এইটো কোৱাৰ কাৰণে? কি এখতিয়াৰৰ ভিত্তিত তেওঁ ক'লে? তেওঁক কোনোবাই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ এখতিয়াৰ আছে নেকি? চৰকাৰে এখন বনাইছে, আমি তাত বিৰোধিতা কৰিছোঁ, সময়ত এই কথাবিলাক আমি প্ৰত্যুত্তৰ দিম। এক্ট হৈছে, এক্টে যিটো কৈছে তাৰ বাহিৰত গৈ তেওঁ কথা কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে এক্ট, মইতো কৈ দিলোঁ, যি কথা তেওঁৰ মুখেৰে ক'ব লাগে তেওঁ কয়, আৰু নহ'লে সিজনহঁতই কয়। সেইকাৰণে তেওঁহঁতই কোৱাই দিছে কথাটো। সাপো মৰক, লাঠিও নাভাঙক। গতিকে তেওঁ সেই মোক কথাখিনি যে কৈছে, চৰকাৰৰ একমতে এইটো সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ নহয়। একমতে নিৰ্দিষ্ট এলেকাত কাটিব পাৰে, একমতে নিৰ্ধাৰিত এলেকাত সকলোৱে গৈ একেলগে আপোনাৰ কৰিব পাৰে। এওঁতো তাৰো ওপৰত, তেওঁৰ কথা নহয়। তেওঁ, মই নাভাবোঁ তেওঁ মনেৰো এইটো বিচৰা নাই, কিন্তু এই আগৰ বিজনেছ সেইটো ল'ম নে এইটো ল'ম, সেইকাৰণে কৈছে আৰু কি ক'ব আৰু। কাৰণ গৰু অসমৰ ৰাইজৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্তু। কৃষকসকলৰ কাৰণে গৰুই আটাইতকৈ প্ৰিয়। গতিকে সেই প্ৰিয় বস্তুটোকে কুৰবানী আগৰ পৰা কৰি আহিছে। গতিকে বৰ্তমান যিটো চৰকাৰৰ নিয়ম নীতি বা যিটো কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট পাছ কৰা হ'ল, সেইমতে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এৰিয়া বাদ দি পেলাই বাকীখিনিতো কুৰবানী কৰাত, গৰু কুৰবানী কৰাত কোনো আপত্তি নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই কিয় এই কথাখিনি ক'লে, ইয়াত এটা ৰহস্য লুকাই আছে। সলনি মানসিকভাৱে হৈছে না সলনি পলিটিকেলি হৈছে, এইটো কেনেকৈ ক'ম? মই ক'ম যে এইটো পলিটিকেলি হৈছে। যে ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহে হিন্দু ধৰ্মক বেয়া পোৱাটো ধৰ্ম নহয়। নিজৰ ধৰ্ম মানি চলক, অন্য ধৰ্মক শ্ৰদ্ধা কৰক। গতিকে অন্য ধৰ্মৰ হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাটো এইটো পাপ, বুজিছে? और कौन क्या कहता है नहीं कहता, इसमें हम कभी कितना भी बड़ा आलिम आ जाए हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। हम फॉलो करते हैं इस्लाम, कुरान, सुन्नत, इसको फॉलो करते हैं। फिर बदरुद्दीन आजमल है या कोई और बड़ा आलिम हो जाए, वो बात कोई कह देगा, अपील करेगा या कहेगा सख्ती से मैं मना करता हूँ कि गाय वगैरह ज़बर ना करो, इसका हमें कोई फैक्टर नहीं पड़ता। हम किसी की इत्तेबा करते ही नहीं है, किसी के पीछे चलते ही नहीं है। हम तो कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, बस उसी पर हम अमल करते हैं और करते आ रहे हैं 1400 साल से, और आज भी कर रहे हैं, क़यामत तक करते रहेंगे। उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बात दरअसल मेरी यही है, उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे CM साहब ने एक ऐसे अंदाज में कहा कि उनकी बात मुझे अच्छी लगी। जैसे भी हो, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में कहा कि जो आइन है उसको फॉलो करो। जो आइन है वो हम फॉलो करते आ रहे हैं, मुसलमान के रग रग में है। जब से 1400 साल से हम
दूसरों को तकलीफ़ ना हो ऐसा कोई काम करते ही नहीं है। और इस वक्त भी जो आयन हमारे लिए गवर्नमेंट की तरफ से पास किया जाता है उसको हम अब भी मानते हैं और मानते रहेंगे। ये हमारा मज़हब का तकाज़ा है। हम अल्लाह के नबी ने कहा कि किसी धर्म को नुकसान पहुंचाना, किसी धर्म को गाली देना, किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना, अगर हमारे किसी काम से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो हम उस काम से बाज आ जाएंगे, हम रुक जाएंगे। इसलिए हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। ये हमारा धर्म, हमारा मज़हब इजाज़त बिल्कुल ही नहीं देता है। हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने ये बात कहा, अगर मैं क्या बात कहूँ, मैं यूडीएफ के बारे में बिल्कुल ही मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। असल में इन्होंने बदरुद्दीन अजमल जो बात कही ये बीजेपी की तरफ से कही है। असल में यूडीएफ अगर सही माने में देखा जाए, जब से यूडीएफ आया तब से फितना है इस आसाम के अंदर। यूडीएफ का पैदा होना है कि मुसलमानों हिंदुओं के अंदर जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत ख़त्म हो गई। इन्होंने एक पार्टी कायम कर लिया। ये मैं कहता हूँ कि यूडीएफ अगर देखा जाए ये बीजेपी का एक पार्ट है, ये बीजेपी का बी टीम है। यूडीएफ को वोट देना है तो उससे बेहतर बीजेपी को वोट दे दो, कि अंदर से क्यों दे दो, डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दो। यूडीएफ को क्यों दे दो? यूडीएफ को देना बीजेपी को देना ही है तो हम डायरेक्ट बीजेपी को देंगे वोट, तभी अच्छा रहेगा। इसमें हमारा भी फायदा है। हम खामखा यूडीएफ को दे करके एक फितना कायम करते हैं। मैं सबसे यही अपील कर रहा हूँ, अगर देना ही है तो उसी को दो, अंदर बी टीम को क्यों देते हो? और अगर इससे कोई बेहतरीन कोई पार्टी है तो हम उसको देंगे वोट। लेकिन ये जो है ये रंग देने वाली पार्टी है। ज़बरदस्ती खाने के बारे में कोई ताकीद नहीं कि इस जानवर को खाना ही पड़ेगा। किसी किताब में नहीं, ना हदीस में है ना कुरान में है। किसी और धर्म में अगर देखा जाए तो बाज़ जानवर को नाम ले कर के, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, नाम ले कर के उसमें जो है तस्करा है कि इन जानवरों को खाओ। लेकिन हमारे धर्म में तो है ही नहीं जानवर को खाना। हम तो ये जो जानवर ज़बह करते हैं ये हम सुन्नत इब्राहिमी है और हमारे मजहबी तकाज़ा है, हम करते आ रहे हैं। और हम गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करते हैं कि हम तो अगर पूरे साल आप जो कहते हैं हम पूरे साल नहीं खाएंगे, हम गाय के सामने ही नहीं जाएंगे, चलो। लेकिन जब मजहबी तकाज़ा आ जाता है कुर्बानी करना, तो एक दिन के लिए इसकी इजाज़त होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ एक दिन के लिए कम से कम इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इलाके में, बंगाल के अंदर, आसाम में भी बाज़ इलाकों के अंदर इसकी इजाज़त मिल चुकी है, इजाज़त है। और बाज़ जगह इंडिया के बहुत सारे इलाकों में इजाज़त है। जब लॉ पास किया जाए तो पूरे हिंदुस्तान का एक लॉ होना चाहिए। लेकिन ये हम देखते हैं किसी स्टेट के अंदर उसको जायज़ कर देते हैं, किसी स्टेट के अंदर उसको नाजायज़ कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। लॉ होना चाहिए तो एक लॉ हो, हम मानेंगे और हमको मानना भी चाहिए। हम सब मानते हैं और मानेंगे भी।